کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھے 3 سٹیک ہولڈرز۔ وفاق اور سندھ حکومت کا مشاورت کے لیے 6 رکنی کوآرڈینیشن کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ ایم کیو ایم بھی شامل۔ اسد عمر کہتے ہیں کمیٹی 6 شعبوں میں کام کرے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ پینے کے پانی کا ہے، دوسرا سیوریج اور گندگی کا ہے، تجاوزات، سڑکوں، سرکولر ریلوے، گرین لائن منصوبے کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ برطانیہ میں فرانس سے غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ 10 روز میں 1000 سے زائد غیر قانونی مہاجرین سمندر کے راستے برطانیہ پہنچے۔ تارکین وطن میں خواتین بھی شامل۔ مہاجرین کی آمد روکنے کے لیے برطانوی حکومت نے کوششیں تیز کر دیں۔ کورونا کے دوران کرایہ داروں کو دی گئی چھوٹ ختم ہونے میں چند دن باقی۔ بے روزگاری سے پریشان شہری بے گھر ہونے پر تشویش کا شکار۔ ویلز اور اسکاٹ لینڈ میں کرایہ داروں کو دی گئی رعایت کی مدت بڑھا دی گئی۔ برمنگھم کے سب سے بڑے قبرستان میں بارش کا پانی جمع۔ کئی قبروں میں پانی داخل ہونے پر پاکستانی کمیونٹی میں غم و غصے کی لہر۔ برمنگھم سٹی کونسل نے سخت تنقید کے بعد مسئلہ حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ لندن میں پاک میڈیا کرکٹ کلب کا جشن آزادی کپ شائقین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ پاکستانی صحافیوں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے شاندار کھیل پیش کیا۔ فضا ملی نغموں سے گونجتی رہی۔ سعودی دارالحکومت ریاض اور جدہ میں جشن آزادی کے رنگ عروج پر پاک میڈیا جرنلسٹ فورم، پاکستانی مسیحی کمیونٹی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی تقریبات میں اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی دبئی میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں قاف لیگ سے اتحاد آئندہ بھی برقرار رہے گا۔ 2 سال بہت مشکل تھے۔ عمران خان نے مودی کے دہشت گرد چہرے کو پوری دنیا کے سامنے کامیابی کے ساتھ بے نقاب کیا۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی نے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے باضابطہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ 3 نومبر کو ہونے والے انتخاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں حمزہ طارق۔ میں ہوں رافعہ عوان۔ بلیٹن میں موجود ہیں ساتھی اینکر سید اقرا بخاری بھی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے 11 قتل، باپ ذہنی معذور یا پھر دماغ کا فتور؟ کراچی کی ڈاکٹر ماہا نے خودکشی کیوں کی؟ نور کے ساتھ شیطان کا کھلواڑ۔ وزراء کی کارکردگی رپورٹ، لاہور تباہی سے بچ گیا۔ اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق 3 ماہ میں 15 لاکھ بے روزگار ہو گئے۔ ان سب پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ مسائل کے حل کے لیے وفاق اور سندھ حکومت 6 رکنی کوآرڈینیشن کمیٹی بنانے پر متفق ہو گئے۔ اسد عمر کہتے ہیں کمیٹی کراچی کے متعلق 6 شعبوں میں کام کرے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ پینے کے پانی کا ہے، دوسرا سیوریج کا ہے، تجاوزات، سڑکوں، سرکولر ریلوے، گرین لائن کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، مسائل کے حل کے لیے 3 سٹیک ہولڈرز مل بیٹھے ہیں۔ وفاق اور سندھ حکومت 6 رکنی کوآرڈینیشن کمیٹی بنانے پر متفق ہوئے ہیں۔ کمیٹی کراچی کے متعلق 6 شعبوں میں کام کرے گی۔ صاف پانی، سیوریج، تجاوزات، سڑکیں، سرکولر ریلوے، گرین لائن کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری، بڑے شہر کے بڑے مسائل حل کرنے کا نسخہ، 6 رکنی کمیٹی، 6 نکاتی ایجنڈا۔ کراچی سمیت سندھ کے مسائل کے حل کے لیے کوآرڈینیشن کمیٹی بنانے پر اتفاق ہو گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کے مطابق وفاق اور سندھ اپنے اپنے منصوبوں کی فہرست سامنے رکھیں گے۔ 2 ہفتوں میں کراچی کے اہم منصوبوں کی فہرست تیار کی جائے گی۔ ایک 6 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے
उस कमेटी में कोई कमेटी का सरबराह नहीं है, कोई कन्वीनर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुशावरत से इत्तफाक़ राय होगी तो काम आगे चलेगा, तो उसमें कोई वोटिंग वगैरह तो है नहीं। मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी 6 मुख्तलिफ शोबों पर काम करेगी। असद उमर ने तफसीलात बता दी। 6 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फ़ैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, जो भी कराची से ताल्लुक़ रखता है उसको पता है कि कराची जो है वो पानी के लिए तरसा हुआ है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है और उसके अलावा उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। कराची के नाले जो हैं वो भरे हुए हैं इस कचरे से, और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कोई प्रॉपर मॉडर्न साइंटिफिक निज़ाम वहाँ पर इस वक्त नहीं है। वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है। वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है कि दोबारा वहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो सके। 5वीं वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी कराची की सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है, वो जो प्रायोरिटी कुछ रोड्स हैं वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। और आखिरी इसका हिस्सा जो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में से एक, और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। कराची के अवाम बातों पर नहीं काम पर यकीन रखते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कमेटियाँ तो पहले भी बहुत बनी थी, काम होगा तो दाद भी देंगे। मसाइल तो एक अरसा हो गया है, ये आपस की लड़ाइयाँ इनकी ख़त्म होगी तो फिर हल हो सकता है। अब आने वाला वक्त बताएगा। ये तो अभी बनी है, खाली नाम तजवीज़ हुए हैं, अब वो काम करती है नहीं करती। कराची के लिए कोई काम नहीं कर रहा, कराची का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। अवाम तो मर रही है, ये लोग कमेटियाँ बनाते बनाते थके नहीं है, अवाम थक गई है। हम मुसलसल ये देखते आ रहे हैं जब से गवर्नमेंट आई है, कमेटियों का शेड्यूल लगता रहा है, लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है कराची में हमें बेनिफिट क्या मिला वो हमको, बर्तन महंगाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब देखें सेवरेज का निज़ाम हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है ना आवाम को। आवाम अपनी जगह पे वहीं रोज़ रुल रही है। अरे सबसे पहले तो ये कराची वालों के लिए दुश्मनी वाला और सुतली माँ वाला सलूक किया है, इसका कोई जवाब ही नहीं बनता। और पहले कौन से मसाइल हल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात में सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को पंजाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने पंजाब में तरक्याती कामों और दीगर मंसूबों से भी आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर पॉल जॉन्स की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। पॉल जॉन्स का कहना था पाकिस्तान का खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन कलीदी है। आर्मी चीफ ने पॉल जॉन्स की सिफारती खदमात को भी सराहा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रज़ा, मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ISPR ने जो ताज़ा तरीन इत्तलात जारी की हैं उनके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर पॉल जॉन्स ने अलविदाई मुलाकात की है। इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पॉल जॉन्स की सिफारती खिदमात को सराहा। इस मौके पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन इंतहाई कलीदी है। जी बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म एहतसाब का अमल यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पहली मरतबा तमाम वज़रा अपनी कारकर्दगी सामने रख रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत कारकर्दगी बताई। फैसल वावडा ने आबी वसाइल में होने वाले कामों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर मवासलात ने मोटरवेज से मुतालिक बताया, जबकि उमर अयूब ने तवानाई के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। दासू का प्रोजेक्ट जो है वो हम शुरू कर चुके हैं। मोमन हमने 54 साल के बाद शुरू करवा दिया है, पैसे डिस्बर्स कर दिए हैं, ग्राउंड पे काम शुरू हो गया है। दामिर बादशाह पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज करने जा रहा है, उसकी डिस्बर्समेंट्स पेमेंट की हो गई हैं, ग्राउंड पे काम शुरू हो गया है। सिंध बैराज की स्टडीज़ का काम शुरू हो चुका है, जिसमें हम सिंध के पानी का मसला हल करना चाहते हैं, और 112 छोटे डैम्स भी हम बना रहे हैं।
نہ صرف یہ کہ ہم اپنی کچھ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم پاکستان خود بنا رہا ہے، بلکہ آج الحمدللہ ہم پاکستان پی پیز کا دنیا کا میجر ایکسپورٹر ہے۔ بلینز آف ڈالر کا جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے یہ ہم امپورٹ کر رہے تھے۔ اس سال ہم نے جو وینٹیلیٹرز بنائے، اگلے ہفتے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈراپ دوسری جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ لائسنس اگر 1-2 ہفتوں میں جاری کر دے گی تو ہماری کیپیسٹی تقریباً 700 وینٹیلیٹرز ماہانہ پہ آ جائے گی، جس کے بعد ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے۔ 8 پروجیکٹ ہے اس سال۔ کمرشل فیزیبلٹی حیدرآباد سکر کی مکمل ہو گئی، 306 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے، ایکنک سے منظوری ہو گئی، EOI اس کا آ گیا، مارچ میں اس کا گراؤنڈ پہ کام شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میاوالی، بلکسر، مظفر گڑھ، یہ سڑک آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس طرح سوات موٹر وے کا دوسرا فیز بھی اس طرح شروع ہو جائے گا۔ کراچی، چمن، کوئٹہ، یہ 700 کلومیٹر سے زائد کی سڑک ہے، اس کی فیزیبلٹی کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا۔ 2030 تک ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارا رینیویبل انرجی اور پن بجلی یعنی کہ پانی سے، ہائیڈل سے جو بجلی بنتی ہے اور تھرمل اور نیوکلیئر شامل کر کے تقریباً 70 سے 75% تک جو بجلی بنائی جائے گی وہ پاکستان کے اندرونی وسائل سے بنائی جائے گی۔ جو پچھلے ادوار میں رینیویبل انرجی کے شمسی توانائی کے پروجیکٹس اور ریٹس جو تقریباً 12.5 اور 13 سینٹس پہ جا رہے تھے وہ ہماری حکومت میں 3.75 سینٹس پہ آ گئے ہیں، اور جس وقت یہ کمپیٹیٹو بیسس پہ جائے گا یہ مزید کم ہوں گے۔ آپ کے سولر پینلز، آپ کے ونڈ ٹربائنز، آپ کے ونڈ بلیڈز، یہ کرٹیکل انجینئرنگ آئٹمز، اور یہ ایک کمپنیوں کی قطار لگی ہے کہ جو کہ پاکستان میں ری لوکیٹ اپنے آپ کو یہاں پہ لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ صرف پاکستان کی مارکیٹ کو سپلائی نہیں کریں گے، یہ ہائی ٹیک انڈسٹری ہوگی، اس سے ملازمتیں پیدا ہوں گی، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو مزید اپرچونٹیز ملیں گی کہ وہ اپنی یہاں پہ ریسرچ کریں اور بہتری لائیں، بلکہ یہاں سے جو ایکسپورٹس ہوگی ان چیزوں کی وہ سینٹرل ایشیا اور افریقہ تک جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں، جبکہ 6 ماہ میں 22,58,000 نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کورونا سے بے روزگاری پر رپورٹ کا اجرا کیا ہے، جس میں 3 اور 6 ماہ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کورونا وبا کے باعث پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں 3 ماہ کے دوران 15,06,000 نوجوان اپنے روزگار سے محروم ہوئے ہیں، جبکہ اگلے 6 ماہ میں مزید 22,58,000 نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق ریئل اسٹیٹ، مینوفیکچرنگ، ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ، رہائشی اور فوڈ بزنس کے شعبوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہوئی، جبکہ تعلیم، صحت سمیت دیگر کچھ شعبوں میں بے روزگاری کی شرح کم ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایشیا کے 13 ممالک کورونا وبا سے متاثر ہوئے ہیں، اور ان متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان 9واں متاثرہ ملک ہے۔ 3 ماہ کے دوران ایشیائی ممالک میں مجموعی طور پر 1 کروڑ نوجوان بے روزگار ہو سکتے ہیں، جبکہ 6 ماہ کے دوران ان ممالک میں بے روزگار نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 1.5 کروڑ تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ برمنگھم کے سب سے بڑے قبرستان میں بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ قبروں میں پانی داخل ہونے کے خدشے کے پیش نظر برمنگھم کی کمیونٹی میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ نکاسی آب کے ناقص انتظامات پر کمیونٹی کی تنقید کے بعد برمنگھم سٹی کونسل نے مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ عابد کاظمی کی رپورٹ دیکھیے۔ برمنگھم میں تیز بارش کے بعد سب سے بڑے قبرستان ہینڈورتھ میں پانی جمع ہو گیا۔ کورونا کی وجہ سے بڑی تعداد میں اموات اور تدفین کے بعد کئی قبریں بھی نہیں ہیں جن میں پانی جمع ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی بھرنے پر لوگ قبرستان پہنچ گئے اور اپنے پیاروں کی قبریں بچانے کے لیے پانی کا راستہ تبدیل کیا۔ اس صورتحال پر کمیونٹی میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ نکاسی آب کے ناقص انتظامات پر کونسل کا ایکشن نہ لینا پریشان کن بات ہے۔ اس صورتحال میں برمنگھم سٹی کونسل اور انتظامیہ فوراً ایکشن لینا چاہیے۔ قبرستان کا پانی اور اس کے سیوریج کے پانی کا فوراً ارینج کرنا چاہیے، اور جو باہر کا پانی قبرستان میں آ رہا ہے اس کو فوراً روکنا چاہیے۔ قبرستان میں ہمارے پیاروں کی قبریں پانی میں بہہ رہی ہیں، وہاں پہ کوئی نکاسی کا انتظام نہیں، کوئی سینیٹری کا انتظام نہیں ہے، سب قبریں پانی میں تیر رہی ہیں۔ تمام جو لواحقین ہوتے ہیں وہ اپنے پیاروں کو وہاں پہ دفن کرتے ہیں،
कि जब उनको मौका मिलता है तो जाके उनकी कब्रों पे वो दुआएं करते हैं, लेकिन आज वहाँ पे इस तरह की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। हम फिल फोर मुतालबा करते हैं कि इसके हवाले से इकदाम किए जाए और पानी का जो सिस्टम है उसको फिल फोर ठीक किया जाए। Qabristans in Birmingham, Handsworth were flooded due to the vast amount of rain. But you would assume that being in the UK, that these things should have been sorted. And if it wasn't for our brave brothers who was there visiting their loved ones, what would have been the state of the qabrs? So, my dear brothers and sisters, I think it's time for us to actually put pressure on the council, even though the council has turned around and said that they weren't present at the time. Clearly, the rain doesn't just come during 9 to 5 hours. दूसरी जानिब शदीद तनकीद के बाद बर्मिंघम सिटी कौंसिल ने वजाहती बयान जारी किया और इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो जल्द से जल्द इन अवामी मसाइल को हल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब की जानिब से जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर ओहदेदारान और कारकुनों ने शिरकत की। इस दौरान मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई और केक भी काटा गया। जद्दा से अदील रियाज की रिपोर्ट। जद्दा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग सऊदी अरब की जानिब से जश्न आज़ादी के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर ओहदेदारों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब की सदारत मुस्लिम लीग नून जद्दा के सदर फारूक अंजम ने की। नायब सदर PMLN जद्दा चौधरी शहबाज हुसैन, चौधरी अब्दुल वहीद, मुदस्सर करीम आवान, राजा परवेज, सरदार इकबाल यूसुफ और दीगर ने भी तकरीब से खिताब किया। मुकर्रीन ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और यौम आज़ादी की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि हमारी असल आज़ादी तब होगी जब कश्मीरी भाई भी हमारे जश्न आज़ादी में शरीक होंगे। आखिर में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई और केक भी काटा गया। अदील रियाज, 92 न्यूज़ जद्दा। जद्दा में मुकीम पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया। जश्न आज़ादी की तकरीब में बड़ी तादाद में ख़ातीन और बच्चों ने शिरकत की। जद्दा में पाकिस्तान क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पास्टर परवेज़ ने की। तकरीब में मसीही कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे, ख़ातीन और बुज़ुर्ग शरीक हुए। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम लहराए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए पास्टर परवेज़, जॉन गुलजार, सैम्यू गिल, किरण तारिक, रीमा गुलजार और नसरीन कैसरत का कहना था, आज हमारे लिए खुशी और ईद का दिन है। हमें आज़ाद वतन मिला जो हमारी सरजमीन है, जहां हम आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। तकरीब में बच्चों और बड़ों सब ने मिलकर मिली नगमे गाए। इस मौके पर फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। आखिर में केक भी काटा गया। सऊदी दारुल हुकूमत जद्दा में पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ सऊदी शहर और बांग्लादेशी शहरियों ने भी शिरकत की और सब ने मिलकर पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाया, केक भी काटा। रिपोर्ट कर रहे हैं जद्दा से अदील रियाज। जद्दा में होने वाली इस तकरीब के मेहमान खसूसी सदर पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम चौधरी नूरुल हसन थे, जिन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आज यौम ओहद और तजदीद का दिन है। इतने कम वसाइल और महदूद वक्त में मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर तकरीब सजाने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीब से मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियात हाफिज जुल्फ़िकार अली, आतिफ अली भट्टू और चौधरी नदीम ने खिताब करते हुए पाकिस्तान से मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया और शिरका को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। क्या जुल्म हो रहा है, बर्मा को देख लें, बर्मा के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इसी तरह फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। जितने भी ममालिक हैं इस्लामी, आप देख लें। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें ये जो आज़ादी है ये एक प्लेट में मिली है। प्रदेश में बैठ के 4000 किलोमीटर से आप अपने देश को यहाँ पे याद कर रहे हैं, प्रोग्राम मना रहे हैं, तो प्रोग्राम में शिरकत करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने कम टाइम में और कम वसाइल होने की वजह से आप अपने देश से मोहब्बत करते हैं, आप अपनी ड्यूटी से फारग होकर आप इस तकरीब में शामिल हुए हैं। तकरीब के आखिर में सब ने मिलकर आज़ादी का केक काटा और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा मुकामी सऊदी शहरी और बंगाली कम्युनिटी के लोग भी शरीक हुए, जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर फिजा मिली नगमों से गूंजती रही। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से PTI साउथ अफ्रीका के ज़रिए एहतमाम खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान थे। ये रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के सिलसिले में अफ्रीका में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी अफ्रीका के ज़ेर एहतमाम एक मुख्तसर मगर खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान थे। दीगर मेहमानों में नेल्सन मंडेला के दामाद और स्वाजीलैंड के प्रिंस थोम्बो मोजी और कांगो के कबायली किंग फैब्रिक अफ्री, पाक प्रेस क्लब के सदर शाहिद चौहान, नायब सदर शहबाज प्रिंस, राजा फखर थे। तकरीब प्रिटोरिया में पार्टी के मरकजी दफ्तर में सजाई गई, जिसमें PTI साउथ अफ्रीका के सीनियर नायब सदर जाहिद अफजल, एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन अलीम चीमा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एजाज जोया, हाफिज गुलाम अब्बास, फलक शेर और दीगर शरीक हुए। तकरीब में भरपूर जोशो खरोश देखने को मिला। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम शुरका की पाकिस्तानी रिवायती खानों से तवाज़ो की गई और वतन अजीज की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। कारकर्दगी की बात करें तो क्या दूसरे सूबों की कारकर्दगी हमसे बेहतर है? दुबई में नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सर खुशनूद से खुसूसी गुफ्तगू करते वक्त क्या कहा, आइए देखते हैं। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर इन दिनों निजी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने 92 न्यूज़ फोरम से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी, इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात और उस्मान बुज़दार के हवाले से चलने वाली क्यासराइयों पर खुलकर गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पंजाब हुकूमत के हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर वज़ीर आज़म इमरान खान का पूरा एतमाद है। दूसरे सूबों की कारकर्दगी कौन सी ठीक है जो पंजाब हुकूमत के खिलाफ बातें की जा रही हैं? उस्मान खान बुज़दार को प्राइम मिनिस्टर का जो सपोर्ट है हासिल है, इत्तेहादियों की सपोर्ट उन्हें हासिल है और मेजॉरिटी जो है हमारी पार्लियामेंटेरियंस की, पंजाब असम्बली के मेंबरान की और PTI की तमाम जो हमारे MP उनकी, इत्तेहादियों के MPs की पूरी सपोर्ट जो है उनको हासिल है। जहाँ तक कारकर्दगी तल्लक है, वो कारकर्दगी या तो हमें ये बताएं कि दूसरों सूबों की कारकर्दगी हमसे बेहतर है, आप दूसरे सूबों का हमसे कंपेयर कर लें। और कोविड-19 देख लें तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से पंजाब ने कोविड-19 का मुकाबला किया है, अगर दूसरे सूबों से बेहतर नहीं तो उनसे कम भी नहीं। गवर्नर पंजाब का अपने प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए कहना था कि पीने का साफ पानी पाकिस्तानियों को मुहैया करना उनका ख्वाब और जुनून है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में गरीबों को साफ पानी मुहैया करने का अज़म कर रखा है। पीने का साफ पानी मेरा पैशन है। पिछले 73 सालों में मुख्तलिफ हुकूमतों ने अरबों रुपया जो हो पीने के साफ पानी पे लगाया है और उसके रिजल्ट ज़ीरो है। ठीक, जितने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं बंद हैं, जितनी वाटर स्कीमें लगाई हैं बंद हैं, जितने वाटर पंप्स लगाए हैं वो ख़राब पड़े हैं। तो इसलिए मैंने एक मौसर प्रोग्राम जो था एक दिया था कि हम एक आबे पाक अथॉरिटी बनाएं पानी की, और सारे जो है बजाय इसके कि 10 लोग एक काम करें, हम एक अथॉरिटी हो जिसके पास पूरी पावर हो कि वो लोगों को पीने का। मुस्लिम लीग काफ पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों ने हमें 2 सालों में काफ़ी सपोर्ट किया है और ये इत्तेहाद आने वाले वर्षों में भी कायम रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 2 सालों में चाहे वो बजट है, चाहे वो और इश्यूज़ है, इत्तेहादियों ने हमें मरकज़ में भी और सूबे में भी भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये इत्तेहाद जो है वो आने वाले सालों में महीनों में जाए। चौधरी सरवर का मजीद कहना था कि हुकूमत के पहले 2 साल बहुत मुश्किल थे। मुश्किल हालात में मुल्क को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश की है। हुकूमत का पहला चैलेंज ये था कि मुल्क दिवालिया न हो जाए और इस माशी बहरान से निकलने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के पहले 2 साल बहुत मुश्किल थे, बहुत हमारे सामने चैलेंजेस थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मुश्किल हालात में हमने कोशिश की है कि मुल्क को सही डायरेक्शन जो है उस पर डाला जाए। और सबसे पहला हमारा चैलेंज था कि तमाम लोग कहते थे कि कंट्री जो है वो दिवालिया हो जाएगा, हम कर्ज़ों की किस्तें अदा नहीं कर सकेंगे। तो माशाल्लाह हमने अपनी तमाम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो है उनको पूरा किया है। गवर्नर पंजाब का ये भी कहना था कि इमरान हुकूमत ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करते हुए मोदी का दहशतगर्द चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। कश्मीर का इशू जो है बैनुल अक़वामी फोरम से हमने
हर जगह पे उठाया है और इंडिया के जो मकरू चेहरा है, जो जुल्म और बर्बरियत जो कश्मीर में कर रहा है, उसको हमने दुनिया में एक्सपोज किया है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और मिनिस्टर फॉर एनर्जी पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलक ने स्पोक पर्सन ओवरसीज कमिश्नर पंजाब बराए मिडल ईस्ट मुनीर अवान की रहशगाह पर PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर और मुश्किल हालात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर केक काटा और मुसरत का इजहार किया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने साबिक नायब सदर जो बाइडन को नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। जो बाइडन 3 नवंबर को होने वाले इंतखाब में सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे, जो रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए सदारत के उम्मीदवार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। Delaware is proud to cast its 32 votes for our favorite son and our next president. Our friend Delaware, Joe Biden. कन्वेंशन के दूसरे रोज मुख्तलिफ रहनुमाओं ने लीडरशिप मैटर्स के उन्वान से अपनी राय का इजहार किया। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का कलीदी खिताब में कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका दुनिया का लीडर है। हकीकत ये है कि अमरीका वो वाहिद तरक्की याफ्ता मुल्क है जहां बेरोजगारी की शरह 3 गुना बढ़ गई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अफरा तफरी फैला दी है। कन्वेंशन के दौरान 2 साबिक सदूर बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर, साबिक खातून अव्वल मिशेल ओबामा, सेनेटर बर्नी सैंडर्स, रिपब्लिकन पार्टी के साबिक वज़ीर खारजा कॉलिन पाउल समेत अक्सर रहनुमाओं ने जो बाइडन को ट्रंप का हरीफ और बाज़ाब्ता तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद करने की तौसीक की। जो बाइडन तीसरी मर्तबा व्हाइट हाउस पर हुक्मरानी की दौड़ में शामिल हुए हैं। इस मर्तबा सूरत हाल इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प है कि इलेक्शन के इब्तदाई मरहले में जो बाइडन की मुखालफत करने वाले रहनुमा अब उन्हीं को अमरीका का निजात दहिंदा करार दे रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इक़दाम। क्रिस्टिया फिनलैंड को कनाडा का वज़ीर ख़जाना बना दिया। 2017 से 18 तक बतौर वज़ीर ख़ारजा काम करने वाली 52 साला फ्रीलैंड कनाडा की पहली खातून वज़ीर ख़जाना है। लिबरल पार्टी की मरकज़ी रहनुमा फ्रीलैंड को वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का जानशीं भी तस्वुर किया जाता है। रवा माली साल के बजट के खसारे में 253.4 अरब डॉलर की कमी मुतवक्के है, जो कि जंग अजीम दोम के बाद सबसे बड़ा शॉर्टफॉल है। मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालने के लिए और कोरोना की वजह से मुतासर होने वाली मईशत की बहाली का काम फ्रीलैंड के लिए चैलेंज होगा।